और मेरा ध्यान सिर्फ यहीं पे होना चाहिए, आप लोगों के कैमरा पे नहीं, इसीलिए स्विच ऑन कर लीजिए, बार बार बोलना ना पड़े। ओके पूजा सिन्हा, स्टार्ट। Okay, ma'am. By 2007 years after Eugene's illness, his life and achieved a kind of equilibrium. मैम क्या है? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं अभी तक क्या पूजा? मैम पढ़े हैं इक्विलिब्रियम। equilibrium. ओके। He went for a walk every morning. He ate what he wanted, sometimes 5 or 6 times a day. His wife knew that as the television was tuned to the History Channel, Eugene would settle into his plush chair and watch it regardless of whether it was airing reruns or new programs. He could not tell the difference. As he got older, however, Eugene's habits started impacting his life in negative ways. He was sedentary, sometimes watching television for hours at a time because he never grew bored with the shows. His physician became worried about his heart. The doctor told Beverly to keep him on a strict diet of healthy foods. She tried, but it was difficult to influence how frequently he ate or what he consumed. He never recalled her ad- admonition, even if the refrigerator was stocked with fruits and vegetables. Eugene would root around until he found the bacon and eggs. That was his routine, and as Eugene aged and his bones become more brittle, the doctor said he needed to be more careful walking around. In his mind, however, Eugene was 20 years younger. He never remembered to step carefully. All All right, my pause now, pause. So what have you inferred from this paragraph? इस पैराग्राफ से क्या समझे आप लोग? क्या डिस्कशन हो रहा है? Anyone in the class? मैम इसमें यूजन के बैड हैबिट के बारे में, नेगेटिव हैबिट के बारे में बताया जा रहा है। बैड हैबिट के बारे में और थोड़ा इलाबोरेट करिए। बट हाँ, थोड़ा सही कैच किया यार। बेसिकली यूजिन का जैसा आदत था, वो कुछ भी करके भूल जाता था। आप देख रहे थे कंटिन्यूस वो बेकन और एग खाता था, फिर सोता था, फिर वापस उठ के वही काम करता था, क्योंकि उसको याद ही नहीं होता था कि हम जस्ट पहले खाए, जस्ट 40 मिनट्स पहले खाए। ठीक है, शुरू से आप देखते आए, टीवी चैनल कोई भी देखता था उसको कभी बोर ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि एक शो देखने के बाद उसको रियल मतलब याद ही नहीं रहता था कि जस्ट इससे पहले हम शो देखे हैं ये वाला। ठीक है, ये जो है बिकॉज ही नेवर ग्रीव बोर्ड विद अ शो, एक ही शो देखते रहता था वो, उसको पता मतलब याद ही नहीं रहता था इससे पहले सेम शो वो देख रहा है। ठीक है, तो एक ये बुरी आदत थी। दूसरा, वो कभी भी सही डाइट जो होता है वो डाइट नहीं खाता था, वही बेकन एग वही खाया करता था। तो जो फिजिशियन है वो थोड़ा बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट डाइट रखने के लिए, क्योंकि उनका एज हो चुका है, जो कि यूजिन को पता नहीं। यूजिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है ना, ही वॉज 20 years younger. See, in his mind, however, Eugene was 20 years younger. मतलब इनके दिमाग में यूजीन के अकॉर्डिंग वो 20 साल छोटा था, क्योंकि उसको 60 के बाद तो कुछ याद नहीं है ना, 60 के बाद उसको याद नहीं है, तो एक्चुअल एज उसका जो था उससे वो 20 साल अपने आप को कम समझ रहा है। ठीक है, तो वही फिजिशियन बोल रहे हैं कि उनको सही डाइट देने के लिए और उनके रूटीन को चेक करने के लिए, क्योंकि चूंकि इनका एज हो रहा है तो उनका बोन और ज्यादा ब्रिटल हो रहा है। ब्रिटल मतलब मैम कमजोर हो रहा है। कमजोर हो रहा है। ठीक है, ब्रिटल बेसिकली जो इजिली ब्रेकेबल हो उसको हम लोग ब्रिटल बोलते हैं। ये पैराग्राफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ इसी तरह धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। यहाँ से शुरू करिए और ध्यान से सुनिए।
All my life, I was fascinated by memory. A Squire told me. Then I met EP and saw how rich life can be even if you can't remember it. The brain has this amazing ability to find happiness when even when the memories of it are gone. It's hard to turn that off, though which ultimately worked against him. Beverly tried to use her understanding of habits to help using avoid problems. As he aged, she discovered that the could short circuit some of his cues. If she didn't keep icon in the fridge, Eugene would not eat multiple unhealthy breakfast. He would sometimes pick at it, and as the meal became a habit, he stopped searching the kitchen for treats. Diet gradually improved. Despite these efforts, however, Eugene's health still declined. One spring day, Eugene was watching television पैराग्राफ तक क्या when he देखे? suddenly shouted, एक मिनट, Beverly. इस पैराग्राफ तक क्या देखे सोनाली? Yes, ma'am. इस पैराग्राफ तक क्या समझ में आया? पल्लवी, अब तक हमने देखा कि बेवर्ली उसके डाइट को इम्प्रूव करने के लिए फ्रिज में बेकन रखना ही छोड़ दी। इसके वजह से डाइट थोड़ा बहुत इम्प्रूव जरूर किया, क्योंकि टेबल पे वो सैलेड रखती थी, जब भी उसको भूख लगती थी वो सैलेड ही खाता था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यूजिन का हेल्थ डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। डिस्पाइट दीज एफर्ट, यानी डाइट तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन इसके अलावा भी इसके बावजूद भी यूजिन का हेल्थ डिक्लाइन कर रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है डिक्लाइन होने के बाद, देखिए आगे। ये कोई अभी पढ़िए सोनाली, सोनाली कोई पढ़ रही है? Yes, ma'am. Despite effort, however, using health still declined. She shouted. Beverly ran in and saw him clutching his chest. She called an ambulance. At the hospital, they diagnosed आवाज आप लोगों को भी सुनाई नहीं दे रहा? a heart attack. By then, the pain had passed and using आप लोगों को भी आवाज सुनाई नहीं दे they रहा? tried to get him क्योंकि इधर तो आवाज quite fiddly. The sensors like tapping. मैम सुनाई दे रहा? आज तो क्लियर। तो इस साइड पे नेटवर्क इशू है शायद। ओके, कंटिन्यू। By tapping the leads in place and telling him they would use restraints if he continued fusing. Nothing worked. He forgot the threat as soon as they were issued. Then his willingness to and to repeat the compliment over and over each time she saw him. We wanted to, get his pride involved. His daughter, Carol Reyes, told me we had say, "Oh, Dad, you are raising our science by keeping this doodad
He loved it. After a couple of days, he did whatever they asked. Eugene returned home a week later. Then, in the fall of 2008, while walking through his living room, Eugene tripped on a ledge near the fireplace, fell, and broke his hip. At the hospital, Squire and his team worried that he would have panic attack because he wouldn't know where he was. So he wrote a site explaining what had happened and posted photos of his children on the walls. His wife and kids came every day. Eugene, however, never grew worried. He never asked why he was in the hospital. He seemed at peace with all the uncertainty by that point, said Squire. It had been 15 years since he had lost his memory. It was as if part of his brain knew there were some things he would never understand and was okay with that. Beverly came to the hospital every day. I spent a long time talking to him, she said. I told him that I loved him and about our kids and how much he was adored. We were married for 57 years and 42 of these were a real, normal marriage. Sometimes it was hard because I wanted my old husband back so much, but at least I knew he was happy. A few weeks later, his daughter came to visit. What's the plan? Eugene asked when she arrived. She took him outside in a wheelchair onto the hospital's lawn. It's a beautiful day, Eugene said, pretty nice weather. Who with a dog? She thought he might be able to come home soon. The sun was going down. She started to get ready to take him inside. Eugene looked at her. I'm lucky to have a daughter like you, he said. She was caught off guard. She couldn't remember the last time he had said something so sweet. I'm lucky that you are my dad, she told him. Ghost, it's a beautiful day, he said. At 1 o'clock in the morning, Beverly phones rang. The doctor said Eugene had suffered a massive heart attack and the staff had done everything possible but had not been able to revive him. He was gone. After his death, he would be celebrated by researchers. The images of his brain studied in hundreds of labs and medical schools. I know he would have been really proud to know how much he contributed to science. Beverly told me. He told me once, pretty soon after we got married, that he wanted to do something important with his life, something that mattered. And he did. He just never remembered any of it. Okay, this is the end of chapter 1. What was been discussed at last? Sonali? Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. क्या हुआ? Try at least. No one. यूजिन के गंदी आदतों की वजह से उसको माइनर हार्ट अटैक आ जाता है। नहीं ये तो नहीं लिखा हुआ है, आदत तो सुधर चुका था। तो वो चिल्लाता तो He was suffering, हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल गया इमरजेंसी में। उसके अलावा सबको लग रहा था कि वो वापस घर आ जाएगा, जैसे हमेशा उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहता था, हॉस्पिटल तो जाना पड़ता ही था। और वही अभी भी सोचा जा रहा था, लेकिन देखा कि यहाँ लास्ट में ये कन्वर्सेशन हुआ बेटी के साथ भी। ठीक है, गॉश इट्स अ ब्यूटीफुल डे, आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटी की तारीफ हुई थी। आई एम लकी टू हैव अ डॉटर लाइक यू। बेटी ने ये कहा, आई एम लकी दैट यू आर माय डैड। फिर वापस से ऑब्वियसली जैसा भूलने की बीमारी, उसको कुछ याद नहीं है। गॉश अगेन
ही स्टार्टेड द सेम कन्वर्सेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, उसके बाद रात के 1 बजे फोन आया कि अब यूजीन नहीं है, हार्ट अटैक से उसका डेथ ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन साइंस में उनका कंट्रीब्यूशन अभी भी जाना जाता है। ओके, दिस इज द स्टोरी कि कैसे मेमोरी लॉस के बाद भी कोई भी आदतें या नई आदतें लगती है। कोई भी चीज को बार बार अगर कोई आप देखिए कि दिमाग नहीं है, मेमोरी लॉस है, तुरंत तुरंत भूलने का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कोई चीज रिपीटेडली करने से कैसे कोई आदत डेवलप हो गया उसके। ठीक है, सेम वे हमारे लाइफ के साथ भी, क्योंकि सारा स्टोरी हम जो देख रहे हैं वो हम अपने आप से भी रिलेट करेंगे, राइट। अगर कोई टफ है, मान लीजिए पढ़ना नहीं पसंद, ठीक है, बुक पढ़ना नहीं पसंद, रीडिंग देना नहीं पसंद, तो वही काम अगर डेली अगर आप करें, ठीक है, आप एक ही पेज पढ़े, 2 ही पेज पढ़े, ग्रेजुअली देखेंगे वो हैबिट आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, वो एक्शन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नेक्स्ट, दैट इज क्रेविंग ब्रेन। क्रेविंग मतलब मैम लालसा किसी चीज किसी की। चीज की, हाँ, किसी चीज का लालसा क्रिएट करना दिमाग में। तो कैसे नया हैबिट क्रिएट होता है। नया हैबिट यहाँ पे आपका रिलेशन है, जैसे मान लीजिए कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, तो वो हम कस्टमर क्यों खरीद लेते हैं, आखिर क्या वो लोग करते हैं ऐसा जो कि हम लोग सब कुछ खरीदना शुरू कर देते हैं। मैगी, इट वाज नॉट देयर इन द मार्केट बिफोर, लेकिन मार्केट में आने के बाद सब लोग पागल हो गए मैगी के लिए। किस घर में अब मैगी नहीं है? ठीक है, पहले एक ही साबुन हुआ करता था, अब क्या है, इतना मार्केटिंग हुआ जो कि अब फेस वॉश, फेस के लिए अलग, फेस आपका डेलिकेट होता है, इस तरीके से मार्केटिंग किया गया है। हर नया आदत धीरे 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 डेवलप किया गया है। ओट्स पहले कौन खाता था, अब ओट्स को हेल्दी बोल करके अब सबके रोजमर्रा के समझिए कि ब्रेकफास्ट में तो जरूर लोग लगभग जो हेल्थ कॉन्शियस है वो ओट्स लेते हैं। यस और नो? तो ये है आपका क्रेविंग ब्रेन में आप लोग यही देखेंगे कि कैसे कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है और कुछ बहुत सक्सेसफुल हो जाती है और कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट आपको यहाँ ऐसा भी मिलेगा। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, मैंने आपको बताया था ये बुक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड थर्ड वन वाज सोसाइटल बिहेवियर। ठीक है, तो अभी हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर ही चल रहा है। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट द क्रेविंग ब्रेन। तो यहाँ से आप ये सब पढ़ेंगे इस बुक में कि कोई प्रोडक्ट कैसे सक्सेसफुल हो जाता है। प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल है, कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट है, या फिर आउट ऑफ मार्केट होने के बाद क्या सर्टेन चेंजेस ला करके वो वापस से बूम कर सकता है मार्केट में। ये सारा चीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर। ऑलराइट, गॉट इट? तो यहाँ से आप पढ़िए अदिति कुमारी, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट। One day in the early 90s, a prominent American executive named Claude C. Hopkins was approved. The friend had, yeah, यहाँ पे इस चैप्टर जैसे उस चैप्टर का मेन हीरो यूजीन था, सारा कुछ उसी के ऊपर सराउंडेड था। इस चैप्टर का मेन हीरो आपका हॉपकिंस है। ठीक है, तो क्लाउड सी हॉपकिंस। the friend had discovered an amazing product. He explained that he was convinced would be a hit. It was a toothpaste, a mentally fruity concoction he called Pepsodent. There were some Disney investors involved. One of them had a डाइसी इन्वेस्टर मतलब कुछ पागल इन्वेस्टर्स थे उसमें इन्वॉल्व। dicey investors involved. One of them had a string of busted land deals. Another, it was rumored, was connected to the mob, but this venture the friend promised was going to be hugged. If that is Hopkins, Aditi, huge, going to be huge। going to be huge. हॉपकिन यहाँ पे देखिए बेसिकली एड मैन कहा जाता है, आगे आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट कंपनी में इनका बहुत नाम है। फाइन, तो इनको बहुत कुछ ओल्ड फ्रेंड अप्रोच किए नए बिजनेस आइडिया के साथ। इन्होंने बताया कि कैसे ये पेप्सोडेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा मार्केट के लिए।
ठीक है, ऐसा टूथपेस्ट जो मिंटी है, फ्रोदी, मिंटी मतलब मिंटी फ्लेवर का है, फ्रोदी मतलब बहुत झागदार है, ठीक है, झागदार, कंपोजिशन मतलब क्या हो, उसका कंपोजिशन ऐसा है जो झाग देता है, ठीक है। तो ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट रहेगा अगर हम मार्केट में लॉन्च करेंगे तो। लेकिन इन्वेस्टर्स के बारे में जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो इन्वेस्टर का ज्यादा अच्छा फीडबैक नहीं दिया गया है। इससे पहले कुछ डील हुआ था, तो वो लैंड वाले किसी चीज में वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लैंड का घपला किए कर रखे हैं। इसके अलावा ये वेंचर के बारे में फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि ये बढ़िया रहेगा, फ्रेंड प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये बहुत ह्यूज रहेगा, ठीक है। इफ दैट इज हॉपकिन वुड कंसेंट टू हेल्प डिजाइन ए नेशनल प्रमोशनल कैंपेन, अगर हॉपकिन हेल्प करता है ये नेशनल प्रमोशनल कैंपेन डिजाइन करने में तो, ठीक है, ये है। आगे चलिए, श्रेया। Hopkins at the time was at the top of booming industry that had hardly existed a few decades earlier, advertising. Hopkins was the man who had convinced Americans to buy a Scotch beer by boasting that the company cleaned their bottles with live stream, while neglecting to mention that every other company used the exact same method. He had seduced millions of women into purchasing Palmolive soap by protest of or tracked historians. He had made puffed wheat famous by saying that it was sort of gums until the grains puffed to टूट 8 times. फ्रॉम गन्स, यहाँ पे पफ्ड व्हीट को जो फुला हुआ राइस होता है उसको ये बोल के बेच दिया कि ये गन से तब तक शूट किया गया है तब जब तक वो 8 टाइम्स ग्रो ना कर जाए, बढ़ ना जाए अपने नॉर्मल साइज से। He had turned dozens of previously unknown products, Quaker Oats, Goodyear Tries, the Vessels Carpet Sweeper, Van Camp's Pork and Wings, into household names. And in the process, he had made himself so rich that he is best-selling autobiography, My Life in Advertising, devoted long passages to the difficulties of spending so much money. Claude Hopkins was best known for a series of rules he coined. Explaining how to create new habits among consumers. These rules would transform industry and eventually become conventional wisdom among marketers, educational reformers, public health professionals, politicians, and CEOs. Even today, Hopkins rules influence everything from how we buy cleaning supplies to the tools governments use for eradicating disease. They are fundamental to creating any new routine. However, when his old friend approached Hopkins about Pepsodent and the ad man expressed only mild interest, it was no secret that the health of American teeth was in steep decline. As the nation had become wealthier, people and started buying larger amounts of surgery processed food when the government started drafting man from the World War I. So many required had rotting teeth and officially said poor dental hygiene was a national security risk. Yet, as Hopkins knew, selling toothpaste was financial suicide. There was already an army of door-to-door salesmen hawking dubious tooth powder and allergies. Most of their going broke. The problem was that hardly anyone bought toothpaste because despite the nation dental problem, hardly anyone brushed their teeth. So Hopkins gave his friend proposal a bit of thought and then declined. He had stick and soaps and cereals. He said, I did not see a way to educate the laity in technical toothpaste theories. Hopkins explained in his autobiography. The friend, however, was persistent. He came back again and again, applying to Hopkins considerable ego until back again and again, applying to Hopkins considerable ego until eventually the ad man gave in. यहाँ तक क्या समझे? दिमाग चलना शुरू हुआ किसी का? यानी अभी भी नहीं? मैं वेट कर रही हूँ कब दिमाग चले आपका। हाँ हाँ बेटू बताइए। बार 1 के बाद मतलब लोग ब्रश नहीं करते थे तो उसके वजह से नहीं टूथपेस्ट
हॉपकिन के बारे में बताया गया है कि इस आइडिया को लेकर के बहुत ही माइल्ड इंटरेस्ट लेते थे, मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। कारण एक तो सारे लोग उतना ब्रश करना पहले प्रचलन में नहीं था, पुअर डेंटल हाइजीन था, दैट इज करेक्ट, बट लोग पहले ब्रश नहीं करते थे। और हॉपकिन ये भी जानते थे कि टूथपेस्ट अगर हम सेल करेंगे तो ये एक तरीके का फाइनेंशियल सुसाइड होगा। क्यों फाइनेंशियल सुसाइड होगा? क्योंकि ऑलरेडी डोर टू डोर सेल्समैन जाते थे कुछ टूथ पाउडर या टूथपेस्ट बेचने के लिए, तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आखिर वो टूथपेस्ट ये पेप्सोडेंट क्यों खरीदेंगे? ठीक है, ये अब तक हुआ है। और इसके अलावा वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बट स्टिल बाकी जितने फ्रेंड थे और हाँ, उनका क्या था, स्टिक रहना चाहते थे सोप और सेरल्स में ही। उनका पहले का जो सोप और सेरल्स का जो पामोलेव आप देख रहे थे और क्विकर ओट्स देख रहे थे, वो इनका ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी आइडिया पे स्टिक रहना चाहते थे। टूथपेस्ट वगैरह में उनका हार्डली कोई इंटरेस्ट था, लेकिन जितने फ्रेंड है वो परसिस्टेंटली ट्राई करते रहे उसको कि वो कंसिडर करे। और एट लास्ट आपके एडमैन, किसको बोला जा रहा है? हॉपकिन को एडमैन गेव इन कहने का मतलब क्या? उनको राजी होना पड़ा। फाइन। अब सोनल प्रिया, यहाँ से आप। Yes, ma'am. Finally, I finally agree to undertake the campaign if he gave me a 6 months option and uh, option on a block of stock. Hopkins wrote. The friend agreed. It would be the weirdest financial decision of Hopkins' life. Uh, within 5 years of that partnership, Hopkins turned Pepsodent into one of the best known products on the earth, and in the processes helped create a toothbrushing habit that move across the America with uh, startling seed. Soon, everyone from Shirley Temples to uh, Clark Gables was uh, bar, uh, Bragging about. begging about their Pepsodent smile. By 1930, Pepsodent was sold in China, South Africa, Brazil, Germany, and almost everywhere. Uh, Everywhere else, Hopkins could buy ads. Decades after the first Pepsodent campaign, Flosters found the toothbrushing and become a ritual for more than half of the American population. Had established toothbrushing as a daily activity. The secret to his success, Hopkins would later boast, was he had found the certain uh, kind of clue and reward for Fueled and a particular habit. reward that fluid fluid a particular habit that it's फ्यूल्ड बोलते हैं ना, उसी तरह ईडी fueled लगा fueled दीजिए। फ्यूल्ड यानी बहुत तेजी से ये हैबिट बढ़ गया, सबके सबके अंदर लग गई ये आदत ब्रश करने की। fueled a particular habit. It's an cat अल्केमी। alchemy. It's an alchemy so powerful that even today the basic principles that still used by video games designers, food companies, hospitals, and millions of salesmen around the world. Eugene Pauly thought as about the habit loop, but it was called called a Hopkins that showed how new habit can be cultivated and grown. So what exactly did Hopkins do? How created a craving
and that craving it's turned out it makes clue and reward work. That craving is what powerful the habit loop. तो आपने देखा कैसे नई आदतें लोगों को लगी, ठीक है, कैसे आगे और टेक्निक्स एंड ऑल यहाँ पे डिस्कशन होगी। ये पढ़िए अब कोई और पल्लवी। आपकी आवाज आ ही नहीं रही है कुछ। आप पढ़ भी रहे हैं क्या? जी मैम, आवाज नहीं आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। Throughout his career, one of Cloud Hopkins' signature tricks was to find simple प्रैक्टिस यानी तरीका, सिग्नेचर तरीका। प्रैक्टिस इसको बोलेंगे ना मैम, सिग्नेचर प्रैक्टिस to find simple triggers to convince consumers to use his products every day. He should cure arts for instance as a breakfast cereal that could provide energy for 24 hours, but only if you at a blow every morning. He hockey tonics that create so stomach joint point bad skin and डेली आप एक पेज पढ़िए, ठीक है। क्योर्ड स्टमक एक्स, जॉइंट पेन, स्टमक एक पढ़ेंगे इसको, क्योर्ड पढ़ेंगे इसको, हॉक्ड पढ़ेंगे इसको, ये हॉक्ड टोनिक, ठीक है। रोहित आप पढ़िए। हॉक्ड टॉनिक। Pallavi, mute yourself. रोहित है नहीं यहाँ पे। बिट्टू आप पढ़िए। यहाँ से he hawk tonic. Hawk tonics that cure some stomach pain, joint pain, bad skin, and hormonal problems. But only if you drank the medicine at symptoms first appearance soon. People were divorcing optimal at daybreak and choosing from the little brown bottle whenever felt a hint of fatigue, which as luck would have it often happened at least once a day. To self-proceedent, then Hopkins needed a trigger that would justify the toothpaste daily use. He sat down with the files of the dental textbooks. It was try reading. He later wrote. But in the middle of one book, I found a reference to Lecus on teeth. म्यूकिन प्लांट एक लेयर दांत पे बैठता जो है दांत के ऊपर। बहुत बहुत दिन तक ऐसे भी अगर सब सुबह ब्रश कर रहे हैं, दोपहर तक कुछ खा पी रहे हैं, तो एक लेयर आपको फील होगा।
ये रेफरेंस मिला, उसको एक क्यू ढूंढना था जिससे लोग और ज्यादा उनको फील हो कि हाँ दांत गंदा है, उसको साफ करने की जरूरत है। तो वहाँ एक बुक में उन्होंने पढ़ा म्यूकिन प्लग के बारे में, ठीक है, जो एक लेयर दांत पे बैठता है, जिसका नाम उन्होंने द फिल्म कहा, ठीक है। दे गिव मी एन अपीलिंग आइडिया, उनको बहुत अच्छा आइडिया मिला। आई रिजॉल्व टू एडवर्टाइज दिस टूथपेस्ट एज अ क्रिएटर ऑफ ब्यूटी, यानी इस टूथपेस्ट को वो एक तरीके का ब्यूटी क्रिएटर कह करके वो एडवर्टाइज करने वाला था, टू डील विद दैट क्लाउडी फिल्म, ठीक है। जो दांत के ऊपर जो लेयर बैठ जाता है उसको अगर आप साफ करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज अ मतलब ब्यूटी का एक बेसिकली चमकता हुआ दांत, तो ऑब्वियसली सब पे अच्छा लगेगा। तो ये एक तरीके से सेल करने का हॉपकिन ने सोचा। समझ आया? Yes. अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, पेज नंबर याद रखिए 52। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको डेली रीडिंग देने की जरूरत है, ठीक है। बहुत बेसिक वर्ड है, अगर वो पढ़ने में दिक्कत होगा तो आगे कम से कम पीजीडीएम करते करते ये सारा चीज खत्म कर लीजिए, ठीक है। पेज नंबर याद रखिएगा। पेज नंबर याद रखने का जिम्मा सोनल मैं आपको दे रहे, 52 मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो बाद में स्ट्रगल होता है दिमाग में कि हाँ कहाँ था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पीडीएफ के हिसाब से 52। Yes ma'am, I've taken. क्लास खत्म होने के बाद कोई पढ़ते हैं क्या ये बुक? नो मैम, एक्चुअली इतना क्लास होता है कि हाँ, टाइम भी नहीं मिलता है, ये तो खैर सबसे बड़ा फ्रेजल वर्ड है। एक्सक्यूज मैम ज्यादा मिल जाता है इससे। हाँ? इस वर्ड से एक्सक्यूज ज्यादा मिल जाता है। क्या ज्यादा मिल जाता है? एक्सक्यूज मैम, जैसे कि टाइम नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा ज्यादा मिल जाता है इसके। ये एक्सक्यूज ज्यादा मिल जाता है। अगर सीरियसली इंटरेस्ट है पढ़ने में तो रात में सोने से पहले 2 पेज पढ़ना शुरू करें, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव। क्योंकि सिर्फ कोर्स वाला पढ़ने से आपके अंदर आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको अगर मेन पर्सनालिटी डेवलप करना है तो थोड़ा किक तो देना पड़ेगा अपने आप। वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि पीजीडीएम के स्टूडेंट को ये सब सारी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। अभी भी कोशिश करिए, आप 1 महीना अगर चाह रहे हैं एक्चुअल इम्प्रूवमेंट तो स्टार्ट रीडिंग आज से ही, ठीक है। 1 पेज 2 पेज सोने से पहले तो पढ़ना है भाई, करिए ना। 6 बजे के बाद तो क्लास नहीं होता होगा, क्लास के टाइम सिर्फ क्लास पे फोकस रहिए। जो क्लास में पढ़ाई हुआ बस वो रिवीजन कर लीजिए। क्लास खत्म हो, अगर आप नोट बनाते होंगे या जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव लिसनिंग का तरीका, तो जस्ट क्लास खत्म हुआ एक बार गो थ्रू हो जाइए, अच्छा ये पढ़ाई हुआ, दैट्स इट। रात में सोने से पहले थोड़ा बहुत आपको टाइम देना है, 1-2 पेज पढ़ना है। नहीं हो पाएगा क्या? अगर कोशिश करें अगेन होगा आपको मैम। ये बुक से आप थोड़ा सीखिए। आपको एक क्यू ढूंढना पड़ेगा। क्यू यानी सोने से पहले, आप पहले से ऑलरेडी आपका कहीं जब सोते होंगे कहीं तो सेल्फ होगा ना, या बगल में टेबल कुछ भी तो रखे होंगे बेड के बगल में, वहीं पे वो बुक रखिए, ठीक है। जैसे सोने के लिए गए उसको देखते ही आपको मन करेगा अच्छा आगे देखिए और क्या हो रहा है। और बिलीव मी, आपको ऑथर रुकने नहीं देंगे। एक बार आप पढ़ना शुरू करें 1-2 पेजेस, इतना इंटरेस्टिंग है ये कि ऑथर विल नॉट अलाउ यू टू स्टॉप। मैंने भी ट्राई किया था, 1 पेज लगा कि नहीं आज 1 ही पेज पढ़ना है, 2 ही पेज पढ़ना है, 3 ही पेज पढ़ना है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कब 7 पेज कब 10 पेज हो जाता है, क्योंकि सारा लिंक होता है ना। आपको हमेशा फील होगा अच्छा इसके आगे क्या हुआ, अच्छा इसके आगे क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ रीडिंग और खुद से जो रीडिंग देंगे ना वो अलग मजा है। तो ट्राई एटलीस्ट फाइंड अगेन 1 क्यू, दैट इज कीप योर बुक जस्ट बिहाइंड योर बेड, ठीक है। जस्ट चेयर के ऊपर रखिए या टेबल के ऊपर रखिए। हॉस्टल में रखते हैं तो कोई सा टेबल रख लीजिए, बगल में रखिए, जो सोते ही मेरा नजर पड़े उस पर। सोने से बस 15 मिनट लीजिए, आप ट्राई करके देखिए। मैं बस आइडिया ही दे सकती हूँ, करना तो आप ही लोग को है। और अगेन क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। पढ़ने के बाद जो अच्छा फीलिंग आएगा, जो आप वर्ड सीखेंगे वो कैब इंप्रूव होगा, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप मेस्मराइजिंग एडजेक्टिव वगैरह देखेंगे आप,
है ना, एडजेक्टिव वगैरह अंडरलाइन करके रखिए, तो वो आपका वोकैब अच्छा करेगा। ठीक है, स्पीकिंग एबिलिटी बेटर होगी आप, वो सब वर्ड अगर आप बोलने में यूज करेंगे तो। ठीक है, एक तो वोकैब सीखेंगे, बोलेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा फीलिंग आएगा, दैट इज रिवॉर्ड। ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, हैबिट इनकलकेट करने के लिए। ठीक है, वही सेम क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, बन जाएगा हैबिट लूप। अंडरस्टूड? ये मामूली बुक नहीं है, अवार्ड विनिंग बुक है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको रिव्यू देखना है या और कुछ जानना है इस बुक के बारे में, तो आप सर्फिंग करिए, यूट्यूब देखिए, इसके चार्ल्स जोहेग का खुद का एक्सप्लेन किया हुआ बहुत सारा वीडियो है, छोटा छोटा, आपको 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, चार्ल्स जोहेग खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इवन अगर इंग्लिश में बेटर समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में आप सर्च कर सकते हैं इस बुक के बारे में क्या रिव्यू है। मतलब हैबिट पे इससे अच्छी बुक अभी तक नहीं लिखी गई, ये रिव्यू है इसके बारे में। कैरोल 1 Present, ma'am. 2 3 4 5 6 6 present, ma'am. 7 8 9 10 11 Present, Roll ma'am. number 9, ma'am. Present. 12 13 well 14 present ma'am. Yes, ma'am. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yes, ma'am. 32 आप लोगों का क्लास वैसे भी 2 बजे शुरू होता है ऑफलाइन, ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के कितने बजे से कितने बजे तक की क्लास? आज एक से क्या 9 बजे से? कितने बजे तक क्लास है? Ma'am, 9 6 to बजे 6. तक. 9 to 6 कंटिन्यूअसली? Yes, ma'am. मैम कभी उसमें से एक क्लास नहीं होता है। अभी कौन क्लास नहीं हो रहा है? Economics. इकोनॉमिक्स रिंके सर पढ़ाते हैं? Yes, ma'am. ओके, तब तो ठीक है, 1 घंटा का जो ब्रेक है, हालांकि रिकमेंड करूंगी रात में ही पढ़िए, 1 घंटा के ब्रेक में रिवीजन कर लीजिए जो जो पढ़ाई हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। Thank you ma'am. Thank you, ma'am.